morning, students. Am I audible? Okay. Okay. So, see, today is the doubt solving session for the higher order ordinary differential equation and the Laplace transform till we learn, right? So, you can ask me your doubts by raising your hands and by chat also, right? So, and yes, one thing I want to tell you that I want response by all of you, right? In today's session, not only 10 to 15 students are active in the daily lectures, but today I want all of you, response by all of you. Otherwise, it will consider as absent. So remember, and the other thing, you have to join both lecture, both session compulsory, first as well as second, right? So have you any doubts, students? Please raise your hand. And through chat box also. I'm waiting for your doubts. Okay, I'm going to unmute you. So if you have your doubt, one student has doubt that, can you please explain the Laplace transform of sine root t? Okay. See, Neil, for that, what is the formula of sin x? See, Neil, I'm giving you a hint, right? For that, first we have to start with sin x. And what is that? Can anybody explain the formula or series of the sin x? What is the formula of sin x? Yes, anyone? See, we are going, one student has doubt that find the Laplace transform of sine root t. And for that, first we'll write the formula of sin x. No, Trupti, you are giving the answer of the Laplace of sin x, but sin t. But I am asking about the formula of sin x. Yes, 2 to 3 students have given answer in the chat box, and they are right that sin x is equal to x minus x cube by 3 factorial, yes, then plus x raised to 5 by 5 factorial, right? Then minus x raised to 7 by 7 factorial, like that, right? Now, here, if we replace our sin x by sin root t, then that is sin root t. So here just root t. Here minus t raised to 3 by 2, right? Then upon 3 factorial, here t raised to 5 by 2 upon 5 factorial plus minus t raised to 7 by 2 upon 7 factorial plus up to so on. So this is the series of sine root t, right? We want to find the Laplace of sine root t, that is Laplace of, if we take Laplace both the sides, Laplace of sine root t is equal to Laplace of root t. Root t is what? T raised to 1/2 minus t raised to 1 by 3 factorial Laplace of t raised to 3 by 2 plus 1 by 5 factorial Laplace of t raised to 5 by 2, right? Like that. But here our given question is, see, here we apply, this is Laplace sine root t. Now, our main, you ask
sine root t by t. So what to do? Whatever, sorry students, whatever answer we find here, then what to do for root upon t? Anyone? What to do for upon t? Just one step for the solution. Yes, yes, Vrishti, you are right. We have to do the integration. And what is the limits of that integration? What is the limit? S to infinity. Yes, absolutely correct. So, Neil, as here you have to do the integration S to infinity, whatever answer Laplace of t raised to 1/2, you have to apply gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 formula with respect to dt, right? And similarly, for the second term, you have to do this for 2 to 3 terms, right? Okay. Now, the doubt is clear, Neil? Give me your response. Okay. So, anyone has any other doubt? Yes, one more student has doubt that. That is d raised to 4 minus 4d cube plus 14d square minus 20d plus 25 into y equal to 0, right? So this is the homogeneous equation. And as you all know, okay, and as you all know, see here the maximum power of d raised to 4, d has 4. So this has total 4 roots. Now the auxiliary equation is what, students? Auxiliary equation is m raised to 4 minus 4m cube minus 14m square minus 20m plus 25 equal to 0. Now tell me, for finding the first root, what we have to do? Here, you may go through by putting testing that if you may go through by putting 1 here, right? So by putting 1, is equation satisfied? Yes, 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 absolutely correct. It is known as the trial and error method. Okay, so you have to go through trial and error method. So you have to check if we take m equal to 1, the equation is satisfied or not. Students, you have to check by this way, trial and error method. M equal to 2, m equal to minus 2, m equal to 3, m equal to minus 3, and up to 4 only. Okay, listen carefully. If your equation doesn't satisfy m equal to 4, maximum 4 to 5, then please don't do that example. It may be contain the complex root, and at that time you have to skip that example, right? So right now, here m equal to 1, 2, 3 and plus 1 plus 2, minus 1 minus 2 minus 3 also not satisfied this equation. So yes, so this equation contain complex root. So here you have to skip this, right? Right? Okay. Anyone? Any other doubt?
because there is no such formula to find the complex root of for the fourth power directly. Yes, complex roots are coming, absolutely. Okay. Anyone have any other doubt? Yes, one student has explained the Laplace transform of unit step function. Okay, see this one is. This is the Laplace transform of unit step function, students. So see, unit step function. This is the definition of the unit step function. Here, u of t is equal to 0 when t less than 0 and equal to 1 when t greater than 0. And this is the displaced unit step functions definition. This is for u of t minus a, right? So these two are definition of unit step function. But for the example, if we apply Laplace transform on that, then the Laplace transform of f of t into u of t minus a, at that time our answer is e raised to minus as into f of s plus a. And similarly, if we apply the Laplace transform f of t minus a into u of t minus a, then that is e raised to minus as f of s. See, suppose your question is find the Laplace transform of cos t minus 1 into u of t minus 1, right? See, here you have to compare your function with this one, right? So by comparing these, what is your value of a? Your a is 1. What is your function of t? Your function of t, f of t is cos t, right? So as per the solution, as per the formula, Laplace of these is equal to e raised to minus as. Here your a is 1. So here e raised to minus s, and Laplace of, this is f of s plus a. So you may also write here Laplace of f of t plus a, right? And here e raised to minus s. What is your function? F of t is cos t. So you may write here cos t plus 1, right? And by applying Laplace on that, whatever answer, what is the answer of cos t plus 1, students? What is the answer of Laplace of cos t plus 1? Anyone? See here, f of s plus a. F of s is what? F of s is integration 0 to infinity e raised to minus st ft dt. And that is what? This is equal to Laplace of f of t, right? So here for f of s, we put here Laplace of f of t. So here if we put, if we replace this function t plus a, then our answer is f of s plus a. Okay. Okay. Yes, e raised to minus s into s upon s square plus 1. Here, as cos function is there, so our numerator is s, and in the denominator, there is, you have to write here s, here s. See, suppose you may, if you have any doubt for this formula, you may also apply, see, this one, right? You may directly apply. You may directly apply here e raised to minus s and f of s plus a, right? So let try this formula. So here Laplace of f of t is f of s.
So here Laplace of f of cos, here our function is t plus 1. T plus 1. So as cos is there, so that is s upon s square, s upon s plus 1 whole square plus 1, right? S upon s plus 1 whole square plus 1. And you may directly write here s upon s plus 1 whole square plus 1. And by simplifying, whatever answer you will get, that is your final answer. Okay, Mahir, now clear? So, see students, whatever u of t minus e, a is your unit step displacement function. And whatever function f of t is given, so you have to find f of s plus a for that, and you have to put e raised to minus a as multiple. Okay? Yes, absolutely right. Okay. So anyone have as any other doubt? Let me ask through chat box, or you raise your hand. I will unmute you. Anyone? No doubt is there? Okay. See, students have given that they have no doubt, right? So I will go through all. See, I have collect all theorems here, and so let recall all formulas. If you remember, or if you find any doubt regarding that, then you may ask through chat box. Okay, till now let's start the revision. Here, see, in the higher order ordinary differential equation, we have start with the homogeneous equations, right? And what is that? Our homogeneous equation is function of d into y equal to 0. At that time, for the solution of that homogeneous equation, we solve with first step with the auxiliary equation. So we write the multiple of y and we convert d by m. So by whatever auxiliary equation we find, then for the solution of that auxiliary equation, there are total 3 cases. Case 1, if all roots are real and distinct, suppose m1, m2, m3 upon mn, all roots are real and distinct, then the proper way to find the solution, that is c1 e raised to m1x, c2 e raised to m2x, c3 e raised to m3x up to cn e raised to mnx. Students, अगर हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के सभी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब सभी अलग अलग है, उस टाइम पे हम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? c1 e raised to the first root plus c2 e raised to the second root plus c3 e raised to the third root. whatever जितने रूट हमारे पास है, हम उसको e के पावर में लिखेंगे. This is the first case, right? Then for the second case, for real and repeated roots, if we have two roots m1 and m2 are real but repeated, means दोनों same है, at that time for writing the solution for real and repeated root, the here c1 plus c2x into e raised to, here m1 and m2 both are same, so we put into the power of m. See, समझ लो जैसे हमारे रूट्स है m is equal to 2 2 2, ये 3 बार रिपीट होते हैं, and the third one is the different root. For the solution of these, we may write here c1, यहाँ पे 3 बार रिपीट होता है, so c1 plus c2x plus c3x square, right? into e raised to, कौन सा वाला रूट रिपीट होता है? 2 वाला, so into e raised to 2x plus हमारा फोर्थ वन रूट क्या है? 3. तो उसको कैसे लिखेंगे? फोर्थ वन के लिए फोर्थ कांस्टेंट आएगा c4, और उसको e के पावर में लिखोगे आप e raised to the power 3x. गॉट इट एवरीवन? अगर हमारा ये 2 वाला रूट फोर्थ टाइम रिपीट होता तो हम उसको कैसे लिखते?
c1 plus c2x plus c3x square plus c3x cube into e raised to 2x. एंड वो अगर कोई डिस्टिंक्ट कोई अलग से दूसरा रूट होगा तो उसको हम अलग कांस्टेंट लिख के उसको e के पावर में लिखेंगे. दिस इज द सेकेंड, this one is the second case, real and repeated root. For the complex root students, here अगर हमारे पास दो इतना याद रखना, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पैर में ही मिलेंगे. It will find always in the conjugate pair. One is the plus sign and other is the minus sign. For the solution of the complex root, उसका जो रियल पार्ट होगा हम उसको e के पावर में लिखेंगे, e raised to the real part, then c1 cos imaginary part. Imaginary part क्या है? बीटा. So c1 cos imaginary part plus c2 sin imaginary part. तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स रूट है 1 प्लस और माइनस i रूट 2 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट है -2 प्लस और माइनस i रूट 3. अगर हमें इस तरह से 4 रूट मिलते हैं, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स रूट है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? c1 for the solution of the first this one root, हमारा जो रियल पार्ट है हम उसको e के पावर में लिखेंगे e raised to the x, then c1 cos root 2x plus c2 sin root 2x, right? So ये हो गया हमारा solution for the first complex root. Then for the second one plus, यहाँ पे हमारा रियल पार्ट क्या है? e raised -2, so we'll put here e raised to -2x. Then c1 c2 आ गया, अभी हमारा नया कांस्टेंट आएगा c3 cos root 3x plus c4 sin root 3x. Now got it students? जितने नंबर ऑफ टोटल हमारे रूट होंगे उतने ही हमें कांस्टेंट मिलने चाहिए सॉल्यूशन में. यहाँ पे हमारे टोटल 4 रूट है, 1 प्लस i रूट 2, 1 माइनस i रूट 2, देन -2 प्लस i रूट 3 एंड -2 माइनस i रूट 3. टोटल 4 रूट हुए, तो यहाँ पे हमें 4 कांस्टेंट मिलने चाहिए. गॉट इट? सो दिस इज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन. ये डिफरेंट टाइप के तीनों केस हो गए, राइट? नाउ for the non-homogeneous ordinary differential equation, what to do? You all know for the non-homogeneous, and have you recognized your given differential equation is non-homogeneous when your differential equation right hand side or constant term is not equal to 0. At that time your given differential equation is non-homogeneous, and for the solution of that non-homogeneous equation you have to find the two solution. Sorry. One is complementary function and pi. Complementary function जो हमने अभी देख लिया, ये 3 केस, उसी को हम complementary function बोलेंगे. And pi, for finding pi, again this 5 case, right? And this is known as the shortcut method. Now, for if our given right hand side or the constant term is the exponential term, क्या करेंगे हम उसके सॉल्यूशन के लिए? फॉर फाइंडिंग pi, उसमें जो x का मल्टीपल होगा स्टूडेंट्स, x के मल्टीपल को हम फंक्शन ऑफ d में d की जगह पे रिप्लेस करेंगे और हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो मिलना चाहिए. इफ वी गेट our denominator 0, then what to do? Then we have to put x in the numerator and derivative of this function of d in the denominator, and then you have to replace your multiple of x and that derivative. जब तक तुम्हें डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं मिलता है, ये प्रोसेस तुम्हें रिपीट करना है. See, these are, I have taken these are some example, but for, see, all these 3 examples are about case 1 for finding pi, right? See, यहाँ पे डायरेक्टली आपको e raised to 4x दिया हुआ है. If we wish to find the pi, then function of d, that is 1 upon d square minus 5d plus 6, and यहाँ पे आएगा e raised to 4x, right? As I told you,
we have to substitute multiple of x, we have to replace d by the multiple of x of the exponential term. So हमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, d की जगह पे 4. कब तक रिप्लेस करना है, जब तक हमें हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं मिलता. यस बंसी, यू आर राइट. सो अगर हम यहाँ पे 4 रिप्लेस करें तो हमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो मिलेगा और जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर है. अगर 4 रिप्लेस करने से डिनोमिनेटर 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर x लिखेंगे, नीचे डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव में ये 4 को रिप्लेस करेंगे. राइट, सी दिस वन इज द इजी. हियर 5 raised to x, 5 raised to x अगर राइट हैंड साइड पे है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, e raised to log 5 raised to x मीन्स ये क्या हो गया, जस्ट मिनट, e raised to log 5 raised to x. राइट, सो उसको हम कैसे लिखेंगे, e raised to x log 5. एंड e raised to x log 5 मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का मल्टीपल क्या हो गया हमारा, log 5. तो हमें नीचे फंक्शन ऑफ d में d की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, log 5 फॉर दिस वन. एंड log 2 इज कांस्टेंट टर्म. जब भी हमें राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म दिया होगा हम उसके मल्टीपल में e raised to 0x लिखेंगे. राइट, और वहां पे डिनोमिनेटर में d की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0. कंडीशन इज सेम, हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो ही मिलना चाहिए. राइट, ओके. एंड फॉर दिस cos हाइपरबोलिक 2x, फॉर दिस cos हाइपरबोलिक 2x हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e raised to 2x. राइट, देन e raised to e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon 2. Right, so this is about the case 1. Students, if you have any doubt you may ask. See here our first session is complete. So let's start the second case, and that is for second case, if your right hand side is sine or cos, at that time you have to put, this is the most important students, normally students do mistake in this case, and this is the important case as well, because if your right hand side is sine or cos, then you have to replace your multiple of x in the denominators d square of d. ओके, जहां पे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर रहेगा उस डी स्क्वायर के डी में ही आप ये कॉस या साइन के जो एक्स का मल्टीपल होगे वो रिप्लेस करोगे, और यू हैव टू पुट माइनस साइन बिफोर दैट. गॉट इट, ओनली डी में आप रिप्लेस नहीं करोगे. जब भी राइट हैंड पे साइन या कॉस होगा आप डी स्क्वायर वाले डी में ही एक्स का मल्टीपल रिप्लेस करोगे और आपको उसके आगे माइनस साइन लिखना है, दैट इज कंपल्सरी. सी दिस इज द एग्जांपल. सी यहाँ पे अगेन आपका डिनोमिनेटर 0 होता है, देन एट दैट टाइम यू हैव टू पुट एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव इन द डिनोमिनेटर एफ ऑफ डी स्क्वायर का, एंड द सेम डी स्क्वायर वाले डी में ही आप एक्स का मल्टीपल रिप्लेस करोगे. If your right hand side is sine 3x or cos 2x, sine into cos, cos into cos या sine into sine, at that time आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और whatever आपका जो फंक्शन होगा आप उसको s plus s, s plus c उस टाइप के, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करोगे. राइट, फॉर केस 3, if your right hand side is x to the power m, उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमारे ये जो फंक्शन ऑफ डी में जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम 1 plus 5d में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमने क्या करना था, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कॉमन लेंगे. अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है फंक्शन ऑफ डी में तो डी का जो भी लेस पावर वाली टर्म होगी उसको हम कॉमन लेंगे, और उसके बाद उसको हम 1 plus 5d में कन्वर्ट करेंगे. उस 1 plus 5d को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वो रेज़ टू -1 होगा, और विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन देन वी हैव टू सॉल्व दिस. राइट, सी दीज आर द एग्जांपल फॉर अप्लाइंग केस 3. यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है. राइट, तो जैसे इसको अगर मुझे सॉल्व करना है सो पी आई क्या होगा, यहाँ पे 1 upon d cube minus d x cube. राइट,
पर मुझे तो इसको 1 + 5d में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू, डी की जो भी लेस पावर वाली टर्म होगी उसको मैं कॉमन लूंगी, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे d, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे 1 - d², राइट, दिस वन इज x³। अभी ये 1 - d² को मैं न्यूमरेटर में रखूंगी, सो -1/d यहाँ पे हो जाएगा 1 - d² रेज़ टू -1 इंटू x³। अभी हम उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे एंड विल गेट अवर आंसर। दिस इज अबाउट केस 3। केस 4 में क्या होता है, हमारे राइट हैंड साइड में एक एक्सपोनेंशियल टर्म होगी और दूसरी फंक्शन ऑफ एक्स, नॉर्मली वो साइन या कॉस के फॉर्म में होगी। एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ अगर साइन या कॉस की फॉर्मूला हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, पीआई फाइंड करने के लिए, जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म में जो एक्स का मल्टीपल है उसको हम फंक्शन ऑफ डी वाले डी में ऐड करेंगे, रिप्लेस नहीं करना है, ऐड करेंगे फंक्शन ऑफ डी प्लस ए। जैसे ये वाला फंक्शन है, सो पी आई 1/d² - 2d + 5, यहाँ पे हो गया हमारा e⁻²x sin x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 e⁻²x आगे लिखेंगे क्योंकि हम उसको यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे होगा d + 2 होल स्क्वायर, ऐड करना है, गॉट इट, 2d + 2 + 5 इंटू साइन एक्स। उसको नीचे सिंप्लीफाई करो और ये साइन एक्स आया, मतलब फॉर केस 2। केस 2 अभी हमने सीख लिया क्या था, d² वाले d में x का मल्टीपल रिप्लेस करना है और आगे साइन माइनस रखनी है। सो यू हैव टू अप्लाई केस 2। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू अप्लाई केस 4, जब भी आप केस 4 अप्लाई करोगे तो उस केस 4 में केस 2 का यूज आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड द लास्ट वन इज केस 5। ये कभी कभी पूछते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, but for the solution of the case 5 you have to remember this formula and you have to apply this formula, right? So this is the most of thing. Now method of reduction of order। method of reduction of order में क्या होता है कि एक solution आपको दिया हुआ होता है, see y1 = x is one solution, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होता है और आपको सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर सेकेंड सॉल्यूशन y2, here uy1 is your second solution, but what is u क्या रहेगा, u होगा इंटीग्रेशन 1/y1² e⁻⁻p dx into dx। y1 है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, p क्या होगा, जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें ये जनरलाइज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, मतलब y का जो भी मल्टीपल रहेगा वो होगा हमारा p। So with the help of p and with the help of the first solution जो हमें दिया हुआ है, हम फाइंड करेंगे y2 u, and by putting u into y1 we'll get our second solution y2। Okay, got it? समझ में आ रहा है तो प्लीज आप रिस्पॉन्ड करो, कुछ डाउट है तो भी रिस्पॉन्ड करो। ओके, सी यूलर-कोशी इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आप यूलर-कोशी इक्वेशन को कैसे पहचानोगे, जब for any example, any question d² के साथ x² है, अगर यहाँ पे d³ है तो उसके साथ x³ d³ + 5x² d², राइट, -3xd + 5 into y, something like that। मतलब d³ के साथ x³ d² के साथ x² d के साथ x, उस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, देन ये इक्वेशन कौन सा हो गया, यूलर-कोशी इक्वेशन हो गया, राइट। एंड यूलर-कोशी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, रहेगा x = e⁻z, राइट। एंड एज हम पहले ही, मतलब फर्स्ट स्टेप स्टार्ट एवरी एग्जांपल ऑफ यूलर-कोशी हम स्टार्ट करेंगे, लेट x = e⁻z, सो z = क्या हो जाएगा, log x, राइट। एंड उसके बाद हम x dy के लिए dy रिप्लेस करेंगे, x² d² y के लिए d - y रिप्लेस करेंगे, सिमिलरली x³ d³ y के लिए d -1 d -2 इंटू y। मोस्ट ऑफ द टाइम उस इतने के लिए पूछते हैं, हायर पावर के लिए नॉर्मली यूलर-कोशी नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम थर्ड पावर के लिए ही पूछते हैं। तो
जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, तो हम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई को क्या करें, पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर ये सॉल्व करना है तो हम स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू ई रेस टू जेड, राइट, एज x इक्वल टू ई रेस टू जेड, सो z इज इक्वल टू लॉग x, पर उसकी जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई है तो क्या लिखेंगे, d इंटू डी माइनस वन वाई, राइट। सो ये हमारा हो गया d, यहाँ पे आएगा d इंटू डी माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7d प्लस 12, y इज कॉमन इंटू वाई, राइट, एंड x की जगह पे क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, e रेस टू, x इज e रेस टू z, यहाँ पे x स्क्वायर है तो e रेस टू 2z, राइट। मतलब हमें हमारे फंक्शन को x वेरिएबल x को z में हमने कन्वर्ट कर दिया, और फिर हम शॉर्टकट मेथड से जैसे आगे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, पर हमारा आंसर किस में आएगा, z में आएगा, गॉट इट, आंसर z वाले फॉर्म में आएगा और बाद में हम उसको x में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज यूलर-कोशी स्टूडेंट्स। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला ये जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ही पूछते हैं, बट इट इज वेरी इजी, सो यू कैन नॉट स्किप इट। अगर आपको पूछते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशन लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप उसका रॉन्स्किन फाइंड आउट करोगे। अगर उसका रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट, एंड इक्वल टू 0 आता है तो इंडिपेंडेंट, राइट। सो you may check with the help of the Wronskian. Okay, the next one is most important method, and that is method of variation of parameter method, students. So आप क्या करोगे method of variation of parameter के लिए, यहाँ पे आपको बोल ही दिया जाएगा कि you have to solve with the help of the method of variation of parameter, और वो मेथड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वर्किंग रूल दिए हुए हैं, और आपको उस वर्किंग रूल को ही फॉलो करना है, और उस वर्किंग रूल को फॉलो करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये वर्किंग रूल को फॉलो करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक मिनट स्टूडेंट्स, दिस वन here, this is not dependent, this is independent. When your Wronskian is not equal to 0, your both solution are independent. Where Wronskian is equal to 0, at that time they are dependent. Okay, Wronskian not equal to 0, they both are independent. Wronskian equal to 0, both are dependent. Now for the method of variation of parameter, find the complementary function, मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 का मल्टीपल y1, c2 का मल्टीपल y2। नाउ y1 और y2 की हेल्प से हम रॉन्स्किन फाइंड करेंगे। हमारा रॉन्स्किन कंपल्सरी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देन फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल ux y1 एंड vx y2, u की फॉर्मूला क्या रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ minus y2 q upon w. This w is Wronskian and q is the right hand side of the given differential equation, and you have to find v also. Then you have to substitute value of u and v in this equation, and you may find pi. Final solution is cf plus pi. Students, method of variation of parameter, and उसके बाद जो आने वाली है undetermined coefficient, both are most important method. Euler-Cauchy, shortcut method, method of variation of parameter, and method of undetermined coefficient. उसको आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। ये वाला चैप्टर है वो 26% कवर करता है जीटीयू में, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में से ज्यादा आएगा, राइट। अगर ये क्वेश्चन को आपको बोलते हैं यू हैव टू जस्ट सॉल्व, यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड tan है, sec है, जब भी आपकी राइट हैंड साइड पे tan, sec या लॉगरिथम फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो
ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में है, आपको नहीं भी बोला है तभी आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड ही अप्लाई करोगे, क्योंकि वो इसी मेथड से सॉल्व होगा, राइट। नाउ मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड में आपको याद रखना है कि जब भी राइट हैंड साइड पे tan sec या 1/x ऐसा कुछ हो, उस टाइम पे आप मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अभी मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के लिए आपको फैमिली जनरेट करना होता है, इफ यू रिमेंबर। और फैमिली के लिए हम फैमिली किस तरह से जनरेट करते हैं, अगर आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जैसे यहाँ पे है x², तो एक्स स्क्वायर का फैमिली जनरेट करने के लिए यहाँ पे उसका मल्टीपल जो कांस्टेंट है 8, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। और एक्स स्क्वायर का फैमिली किस तरह से जनरेट होगा, तो एक्स स्क्वायर वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर, पहले तो जो मेंबर है उसको तो लिख ही दो, तो एक्स स्क्वायर को लिख दिया यहाँ पे, फिर उसका डेरिवेटिव और उसका भी डेरिवेटिव, राइट। तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म तो रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देन फर्स्ट मेंबर इज एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, दूसरा मेंबर एक्स और तीसरा 1। तो यहाँ पे पहले CF फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर PI के लिए हमें क्या करना है, उस विद द हेल्प ऑफ उसके फैमिली, तो हम यहाँ पे PI की जगह पे y लिखेंगे, A कांस्टेंट फर्स्ट फैमिली मेंबर, B सेकेंड फैमिली मेंबर, C इंटू थर्ड फैमिली मेंबर, राइट। तो इस तरह से हम y लिखेंगे, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करते थे और दोनों को इक्वेट करके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक्स के कोएफिशिएंट दोनों साइड से इक्वेट करके हम ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें रखने के बाद ये जो भी हमें मिलता है वो हमारा फाइनल PI हुआ, राइट। अगर हमारी राइट हैंड साइड पे साइन है, जैसे है sin 2x, तो इसका फैमिली कैसे बनता है, sin 2x खुद ही तो एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर हुआ 2 cos 2x, यहाँ पे हम 2 को निग्लेक्ट करेंगे, तो इसका फैमिली बना a sin 2x प्लस b cos 2x, राइट। अगर राइट हैंड साइड पे e रेस टू माइनस एक्स है, तो e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हुआ e रेस टू माइनस एक्स, अगर हम ये -1 मल्टीपल को निग्लेक्ट करें तो ये सेम ही हो गया, तो एक्सपोनेंशियल में सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा फैमिली में, वो खुद। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका वेटेज है 20%, तो अगर आप पहला वाला चैप्टर 26% वेटेज, ये 20% करो, दोनों भी ये 2 ही यूनिट करके आप नियर टू 50%, 45 to 50 के बीच में आपका हो जाएगा, राइट। तो फॉर द लैपलास ट्रांसफॉर्म दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, राइट। दिस वन इज द कंडीशन। अगर नॉर्मली ये कंडीशन कभी एग्जाम में नहीं आती तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला ही याद रखनी है, कभी कभी डेफिनेशन पूरी पूछ सकते हैं, अगर डेफिनेशन पूछे तो ये पूरा आपको लिखना रहेगा, राइट। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म इज दिस। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी। लीनियरिटी में हम क्या करते हैं, जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन हो और जितने भी अलग अलग फंक्शन हो, तो जितनी फॉर्मूला हमने देखी है वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली सभी टर्म पे अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमने बहुत बार रिपीट की है, अभी भी बहुत बार आने वाली है। सो अगर किसी को इस फॉर्मूला और इसकी प्रूफ, ये सभी फॉर्मूला की प्रूफ, जैसे कि लैपलास ऑफ t रेज़ टू n की प्रूफ, राइट, देन लैपलास ऑफ जो भी फॉर्मूला आती है बट उसकी प्रूफ भी आपको करनी है, जैसे लैपलास ऑफ sin at, राइट। तो यहाँ पे a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, बट वो कैसे आता है तो उसकी प्रूफ हमने ऑलरेडी की हुई है, तो वो आपको रिपीट करना है। देन फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम की प्रूफ भी पूछी जाती है, बहुत छोटी सी प्रूफ है, ये वाली इतनी सी है, राइट, और हमने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे फंक्शन फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होता है, फंक्शन ऑफ t के साथ जब भी कोई एक्सपोनेंशियल टर्म हो उस टाइम पे हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम अप्लाई करना है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ t, तो आपको पहले ये ब्रैकेट का लैपलास फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म है e रेज़ टू -2t, तो आपको इसका लैपलास फाइंड करके
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, मतलब जहां जो भी इसका आंसर आएगा, इस आंसर में जहां जहां पे एस रहेगा उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एस प्लस 2 से। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से रिप्लेस करो, और प्लस है तो माइनस से रिप्लेस करो। गॉट इट एवरीवन? देन द नेक्स्ट वन इज सेकेंड शिफ्टिंग थियरम। सेकेंड शिफ्टिंग थियरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड शिफ्टिंग भी पूछते हैं बट कंपैरेटिवली कम। फर्स्ट शिफ्टिंग जितना उसका यूज नहीं आता दूसरे टॉपिक में, पर आप पहचानोगे कैसे कि आपका क्वेश्चन सेकेंड शिफ्टिंग थियरम से है? तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। यहाँ पे क्या है, कॉस टी माइनस ए वेर टी ग्रेटर देन ए एंड इक्वल टू 0 व्हेन टी लेस देन ए। इस तरह का कोई भी फंक्शन हो और यहाँ पे टी माइनस वॉट एवर हो और उसी वही वैल्यू कंडीशन में भी हो, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा और लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, उस टाइम पे हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। सेकंड शिफ्टिंग बहुत ही इजी है, e रेस टू माइनस एस, एंड जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन, ये ए को अगर हम निग्लेक्ट करें, स्किप करें, तो फंक्शन क्या बनेगा, कॉस टी। कॉस टी का लैपलेस फाइंड आउट करो, जो भी है यहाँ पे लिख दो, तो इसका आंसर आएगा e रेस टू माइनस एस, एंड लैपलेस ऑफ कॉस टी इज व्हाट, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। आप डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इजी, ज्यादा पूछने में या और टॉपिक में इतना यूजफुल नहीं है, बट अगर मेथड इज वेरी इजी, सो आप स्किप मत करना इसे। नेक्स्ट वन इज, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, दैट इज, यहाँ पे बीच में एक रह गया, दैट इज द differentiation of Laplace transform, if you remember. So differentiation of Laplace transform में क्या रहेगा कि Laplace of t raised to n function of t, Laplace of f of t, right? That is f of s. Here Laplace of f of t is equal to f of s. Now if t raised to n f of t, then क्या रहेगा, minus 1 raised to n nth टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, एंड यहाँ पे आएगा f of s, राइट? अब कैसे पहचानोगे कि ये वाला क्वेश्चन ही है? अगर लैपलेस ऑफ t स्क्वायर साइन ओमेगा t, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे आपको साइन ओमेगा टी का पहले लैपलेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, जो भी आपको लैपलेस ऑफ साइन ओमेगा टी मिलता है उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे। गॉट इट एवरीवन? राइट? नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी है, अपॉन टी है तो फंक्शन ऑफ टी का जो भी लैपलेस रहेगा उसका आप इंटीग्रेशन करोगे और उसकी लिमिट क्या लिखोगे आप, s टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अगर आपको फाइंड लैपलेस ऑफ f डैश t ऐसा क्वेश्चन आता है, f of t is given in your question and you ask for Laplace of f dash t, उस टाइम पे आपको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है। गॉट इट एवरीवन? एंड f of s is what? f of s is Laplace of f of t. f of s आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यू ऑल नो, f of s is जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उस पे आप लाप्लास अप्लाई करना, जो आंसर आता है वो हो गया आपका f of s, एंड आपको यहाँ पे s, ये f of s की वैल्यू, एंड f of 0 मतलब जो गिवन फंक्शन है वहां पे आपको t की जगह पे 0 रिप्लेस करना है। नाउ ओनली 1 और 2 टॉपिक इज रिमेनिंग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इस तरह का फंक्शन इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 टू t है विथ रिस्पेक्ट टू t, और उसका आपको लाप्लास फाइंड करना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है,
डी टी का मल्टीपल, जो कुछ भी रहेगा डी टी का मल्टीपल, ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ टी, उसका हम लैपलास फाइंड करेंगे और जो भी आंसर आएगा डिनोमिनेटर में एस लिखना है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, अगर इंटीग्रेशन 0 टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी फंक्शन का आपको लैपलास फाइंड करना है, तो आपको ये फंक्शन का लैपलास फाइंड करके जो भी आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में एस लिख दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। एंड द लास्ट वन इज यूनिट स्टेप फंक्शन, जो हमने पहले ही देख लिया। स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा था कि d⁴ माइनस 4d³ प्लस 14d² माइनस 20d प्लस 25 इंटू y इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0। मैं राइट नाउ मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको शेयर कर दूंगी, राइट। जिसने मुझे डाउट पूछा है, तो मुझे जस्ट एक टेलीग्राम पे हेलो लिख देना, मैं तुझे पूरा सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। गॉट इट? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e raised to x c1 plus c2 x cos 2x plus c3 plus c4x sin 2x, right? ओके, सो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, मैंने आज उस सब टॉपिक का एक स्मॉल रिकैप ले लिया है। स्टिल अभी आपको कुछ डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? आपको सब कुछ समझ में आया अच्छे से अभी तक का? ओके, सो थैंक यू एवरीवन, you may leave today's session. Thank you.